السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہے، اس عنوان پر آپ سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اس کا درس نمبر 3 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو باتیں بیان کر چکے، ابھی طہارت کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ مطلب کہیں پانی، تھوڑا سا پانی ہے اور پانی بہہ نہیں رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پانی میں کبھی پیشاب نہ کیا جائے۔ ویسے تو پانی بہتا بھی ہو تو بھی جو ہے پانی بہتے ہوئے پانی میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بعض روایت پہ ہے، لیکن چونکہ بہتا ہوا پانی ہے لہذا وہ پاک رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہوئے پانی میں تو قطعی جو ہے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلدار درخت کے نیچے جب پھل پکے ہوئے ہوں، پھل گرتے رہتے ہوں، تو ایسی جگہ پر جو ہے وہ پاخانہ کرنا، یعنی بڑا استنجا جا کر کے کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ کنز العمال کی روایت ہے۔ کل میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور بعض روایت میں مطلب کسی ایک صحابی کے انتقال کی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ پیشاب سوراخ میں کیا گیا اور اس کے اندر جن تھا، اور وہ جن نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ روایت بھی آتی ہے۔ بہرحال وہ روایت مستند نہیں، لیکن ایک روایت آتی ہے۔ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، خاص کر جو راستے میں ہوں اور سایہ دار درخت ہو اور مسافر ادھر سے بیٹھتے ہوں، گزرتے ہوں، وہاں پر پیشاب یا پاخانہ کرنے سے جو ہے منع کیا گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ہوا کے رخ کے سامنے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے آپ میدان میں ہیں، ادھر سے تیز ہوا چل رہی ہے اور آپ ایسے بیٹھ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، ادھر سے ہوا آ رہی ہے، اسی جانب آپ پیشاب کریں گے تو پیشاب کیا کرے گا؟ پلٹ کر آئے گا۔ لہذا کنز العمال کی روایت ہے کہ اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک چیز سے اگر استنجا لے لیا گیا، کبھی کبھی بعض گاؤں میں یا بعض شہروں میں بھی بعض لوگ مسجد میں ڈھیلا رکھتے ہیں، تو وہ ڈھیلے سے استنجا لے چکا ہوتا ہے، پھر آدمی اس میں کیا کرتا ہے کہ دوبارہ استنجا لیتا ہے۔ تو اگر یہ معلوم ہے تو قطعی جائز ہی نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر اس بات کا خاص احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر اپنا ہی ڈھیلا ہے اور معلوم ہے تب بھی نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال جس چیز سے ایک مرتبہ جو ہے وہ استنجا کر لیا گیا ہے، اس سے دوبارہ استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے سنن کبریٰ کی روایت ہے۔ جس انگوٹھی پہ، انگوٹھیاں میں بعض خط ہے وہ کچھ لکھے رہتے ہیں، کلمات لکھے رہتے ہیں، کبھی حروف مقطعات لکھے رہتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ قرآن کی کوئی چھوٹی سی، بہرحال جو بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں انگوٹھی جو ہے وہ پہن کر کے بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی میں بھی جو ہے لکھا ہوا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک صاحب کو خط بھیجنا چاہا، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جس بادشاہ کے پاس خط بھیجا جا رہا ہے، وہ جب تک اس کے اوپر سیل نہیں لگی رہتی ہے، اس خط کو جو ہے وہ اوریجنل نہیں مانتا ہے۔ تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیل بنوائی تھی، اور اس پر محمد رسول اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، اور جب آپ جو ہے وہ کوئی بڑے لوگوں کو خط بھیجتے تھے تو اس پر کیا ہوتی تھی، وہ سیل لگائی جاتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جاتے تھے استنجا کے لیے تو اس انگوٹھی کو کیا کرتے تھے، اتار دیتے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ اگر ایسی انگوٹھی ہے کہ جس میں اللہ کا کچھ کلمہ لکھا ہوا ہے، تو ایسی شکل میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اتار دینا چاہیے۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، اب تعویذ تو ہے وہ 2 طریقے کی ہے۔ ایک تعویذ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ پہن رہے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک تعویذ ایسی ہے جو آج کل لکھی رہتی ہے چاندی میں، اس میں، اور اس میں اوپر سے قرآن مجید نظر آتا رہتا ہے، لکھا ہوا ہے باقاعدہ، یا چھوٹی سی جو ہے وہ پلیٹ پہ لکھا رہتا ہے، یا یہ کہ بعض عورتیں جو ہے نا اللہ کا لاکٹ بنا کے پہنے رہتی ہیں، لکھا رہتا ہے اللہ، اس کا لاکٹ بنائے رہتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ظاہری ہیں، اگر وہ تعویذ ہے یا لاکٹ ہے
या कोई भी चीज़ ऐसी है जो तावीज़ की शक्ल में है और उसमें वो चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर ऐसी शक्ल में उसको भी उतार करके ही हर हाल में जाना चाहिए। लिहाजा ये औरतें वगैरह जो जेवर वगैरह में हर वक्त गले में पहनने वाली चीज़ है, उसमें अल्लाह का लिख करके करना एकदम जो है वो चाहिए कि ऐसा जेवर नहीं बनाना चाहिए। वो तावीज़ जो क्या कहते हैं लिखी हुई है लेकिन बाहर से नजर नहीं आ रही है, कवर्ड है, जैसे कि तावीज़ है, तावीज़ को प्लास्टिक में या मोम जामा में करके ऊपर से कपड़ा लपेटा हुआ है और फिर वो हाथ में या गले में कोई बांधे हुए है, तो फिर ऐसी शक्ल में उस तावीज़ का हुक्म जो है वो आम तावीज़ के हुक्म की तरह नहीं है। वो पहने पहने आदमी जो है वो टॉयलेट वगैरह में जा सकता है, क्योंकि सुनन दारमी में एक रवायत है, रवायत मुझे ये नहीं मालूम हो पाई कि रवायत सही है या ज़ईफ है। बहरहाल सुनन दारमी में एक रवायत है कि वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या हायदा औरतें भी जो है उस तावीज़ को पहने हुए हैं, तो अगर तावीज़ मुतलकन जो है वो नाजायज़ करार दिया जाएगा तो फिर जो औरतें हर रोज नापाक होती हैं या कोई मर्द नापाक हो जाता है तो फिर ऐसी शक्ल में उस तावीज़ को उतारना पड़ेगा। लिहाजा वो तावीज़ें जो नज़र नहीं आ रही हैं, जिनका नक्श जो है ऐसी शक्ल में, वो गोया कि आपने उसको पहन ही नहीं रखा है। यही हुक्म मोबाइल वगैरह का भी है। मोबाइल वगैरह में जो अंदर मेमोरी कार्ड में कुरान करीम लिखा हुआ है और पूरा पूरा जो है वो बहुत कुछ रहता है, डाटा रहता है, उसमें सब कुछ रहता है। अब एक आदमी जेब में रख करके टॉयलेट जाता ही रहता है, तो फिर ऐसी शक्ल में ये उस तावीज़ के हुक्म में है जो नजर नहीं आ रहा है। ये भी गोया क्या है, कवर्ड है। बाद लोग इस पर जो है ना बहुत मसले पूछते रहते हैं कि उसमें कुरान लिखा हुआ है। इस कुरान का लिखना ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी हाफिज है, हाफिज के भी सीने में क्या है, हार्ड डिस्क मौजूद है, तो ऐसे ही इसको भी क्या है उसी किस्म से माना गया कि इस किस्म से जो है वो टॉयलेट वगैरह में जा सकता है। इसी तरीके से इब्न माजा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब करने से मना किया है। ये खड़े होकर पेशाब करने के सिलसिले में एक बात और भी याद रखें, कभी अगर ऐसी मजबूरी हो जाए कि जहां पर बैठकर पेशाब करने से नापाकी होने के चांसेस हैं, तो फिर खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा पब्लिक प्लेस होता है या ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट वगैरह है, या जहां पर जो है वो इंडियन स्टाइल का टॉयलेट ही नहीं है, अब वो कमोट है, वो कमोट खुद इतना गंदा है कि अगर आप उस पर बैठेंगे तो पाक होने के बजाय मजीद क्या हो जाए, नापाक हो जाएंगे। तो फिर ऐसी जगह पर बगैर कराहियत खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर में जा रहे थे और जो है वो एक जगह आपको बाद रवायत में है कि चोट लगी हुई थी और बाद रवायत में है कि जिस जगह पर पेशाब करने के लिए पहुंचे वो जगह जो है ना साफ नहीं थी, अगर वो बैठा जाता तो मजीद क्या है गंदगी होने के चांसेस है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के पेशाब किया। तो ये मुस्लिम शरीफ की गालिबन रवायत है, एकदम सही रवायत है कि खड़े होकर पेशाब किया गया। कभी अगर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह, क्योंकि बाल लोग इस हदीस को लेकर एक हंगामा करते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक रवायत है कि अगर कोई आदमी कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कभी पेशाब किया तो झूठ बोलता है, और दूसरी रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। ये दोनों रवायतें अपनी जगह सही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये बता रही हैं, वो घर की बात बता रही हैं कि घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। तो वो जो कह रही हैं कि अगर कोई कहे हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया तो झूठ बोल रहा है, सही कह रही हैं। यह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है और वो बाहर की रवायत है, सफर की हालत की रवायत है। लिहाजा ऐसी शक्ल में ये अल्लाह ने जानबूझकर अपने नबी से करवाया ताकि उम्मत को क़यामत तक के लिए क्या हो जाए, एक आसानी और सहूलत। अगर स्ट्रिक्टली ये बात होती कि नहीं हर हाल में बैठकर ही पेशाब करना है तो बहुत बड़ा मसला हो जाता, लोग गिल्टी भी फील करते रहते और खड़े होकर पेशाब भी करते। तो क्या हुआ कि आदमी उसको गिल्टी फील नहीं करे बल्कि मसला जान ले कि साहब खड़े होकर पेशाब ऐसी जगह पर मजबूरी दर्जे में किया जा सकता है, या कोई बीमारी है किसी को, बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। बहरहाल तमाम ऐसी शक्लों में खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। अब जब खड़े होकर पेशाब किया जाएगा तो फिर उसकी तरतीब जो है ना सही होनी चाहिए कि जिस जगह पर पेशाब किया जा रहा है वो जगह डाउन होनी चाहिए। अगर मैदान में किया जा रहा है डाउन होना चाहिए कि छींटे जो हैं वो अपने पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर महसूस हो जाए कि पैर पर छींट पड़ी है तो फिर उसको फौरन धोना चाहिए। कपड़े पे अगर पड़ी है तो कपड़े को नापाक समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये खड़े होकर पेशाब करने के सिलसिले में है। नबी की इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि
کہ आदमी आप ये देखें, ये गांव में बहुत ज्यादा होता है, पूरी पूरी टोली औरतों की जाती है बाहर टॉयलेट करने और वहां पर बैठकर टॉयलेट में बातें करती रहती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत जो है वो ऐसी हालत में मना किया है कि आदमी की बात देख, दोनों चीजें होती हैं, एक तो क्या है कि बेसतरी होती है और दूसरा क्या है बातें भी बैठकर करती रहती हैं। तो ये दोनों चीजें से जो है इब्न खुज़ैमा की रवायत है, इब्न माजा की, अबू दाऊद की भी रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया। अब कभी अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि घर में कभी ऐसा हो जाए कि कोई आदमी टॉयलेट में है और किसी ने पुकार लिया, तो फिर अब वो परेशान है कि आदमी कहाँ है, तो फिर ऐसी शक्ल में आवाज करने के बजाय खांस मांस करके ये बता दिया जाए कि हम अंदर हैं। लेकिन वहां से बोल देना ये काम ऐसा कर लो, टेलीफोन उठा लो, ये नहीं होना चाहिए। ये बात करने के मुतरादिफ ही है। तो टॉयलेट में जो है वो बात करने से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से अगर कोई आदमी पेशाब पाखाने में है तो फिर उसको सलाम करना मना है। तो अंदर रहता है तब तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। अब जैसे हम लोगों की मस्जिदों में पेशाब घर लोगों ने खुला बनाने का एक रस्म बना रखा है, हालांकि इसके पहले भी 20 मरतबा बोल चुका हूं कि ये खुला पेशाब बनाने का कोई इस्लामी तरीका है ही नहीं। ये जो पेशाब बनाते हैं पीछे खुला रखते हैं, ये एकदम गलत तरीका है। इसमें दोनों को प्रॉब्लम है। पैंट वाला पेशाब नहीं कर सकता है, जो पीछे खड़ा है उसको बेसतरी होना है उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद वालों को क्या फजीलत है इसमें, ये मुझे आज तक नहीं मालूम हुआ कि ऐसा मस्जिद वाले क्यों करते हैं। लाख रुपए की, 50 लाख की, करोड़ की मस्जिद बनेगी, पेशाब खाने क्या बनाए जाएंगे, खुले बनाए जाएंगे। एकदम गलत तरीका है। पेशाब घर भी वैसे ही बनाना चाहिए जैसे आदमी टॉयलेट। क्या जरूरत है पेशाब घर बनाने की? आप टॉयलेट ही की शक्ल में सब बना दिए, 10 के 10 टॉयलेट बना दीजिए। आदमी इत्मीनान से जाए, उसमें खूंटी लगा दी जाए, आदमी इत्मीनान से जाए, बेचारा पैंट वाला इत्मीनान से टांगे, पेशाब करे, फारिग होकर आवे। ये जो एड़ी के बल खड़े होकर के लोग पेशाब करते हैं, ये सब लोग तकरीबन 99% अपने पैंट में पेशाब करते ही करते हैं। एड़ी के बल जो पेशाब कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि पेशाब हो नहीं रहा सही। और ये एक सख्त किस्म की वईद है, पेशाब के बारे में बहुत सख्त वईद है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं और इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं। बहरहाल जो है पेशाब और पाखाना ऐसी जगह पे जब रहता है तो आदमी वहां पहुंचा और उसके मुंह से जो है वो सलाम कर लिया उसने, तो सलाम करने से भी मना किया गया है और जवाब देने से भी मना किया गया है। तो न पेशाब करते हुए पेशाब पाखाने की हालत में सलाम करना चाहिए और न जवाब देना चाहिए। इसी तरीके से कभी अगर किसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, मजबूत दवायत की रवायत है, ये जो भी मैंने ऊपर वाली रवायत बयान की, ये इब्न माजा की रवायत है। मजमूद रवायत में ये रवायत है कि कभी अगर कहीं आदमी की गैस खारिज हो गई और उसमें आवाज निकल गई तो दूसरों को हंसना नहीं चाहिए। इससे जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो अगर अचानक हंसी निकल गई एक अलग बात है, लेकिन बाकायदा हंसना, जानबूझ करके हंसना, वो एकदम गलत है। मुझे क्या है कि जैसे ही आप हंसेंगे तो आप दूसरे का क्या है दिल दुखेगा, तो किसी के दिल दुखाना जो है वो इस्लाम में जायज नहीं। इस बुनियाद पर इस हंसी से मना किया गया है। इसी तरीके से तहारा से ताल्लुक वजू का मामला है। वजू में बहुत सी चीजें मना है जिसको कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, अनजाने में करते रहते हैं। बहरहाल वजू के सिलसिले कुछ फुक़हा ने बात चीजें वजू में मना लिखी हैं और हदीस की रोशनी में, मतलब हदीस का निचोड़ निकाल करके उन्होंने लिखा है। मैं एक दो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। बाद लोगों की आदत है कि आप कभी वजू जब लोग करते हैं पीछे खड़े हो जाइए। देखिए कैसी कैसी हरकतें होती रहती है वजू में। जैसे बाद लोग आते हैं, आते ही पहले क्या करेंगे, कुल्ली करेंगे, फिर वजू स्टार्ट करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये काफिरों की आदत है। वो लोग भी देखें, हाथ नहीं पहले धुलेंगे, पहले लोटा निकालते क्या करेंगे, कुल्ली करेंगे। ये काफिरों का एक गोया तरीका है। नबी करीम ने कुबरा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको मना फरमाया कि नहीं, वजू जब शुरू करें तो सबसे पहले क्या है, हाथ धुला जाए। और ये गोया हाथ धुलने से वजू शुरू करना एक तरीके से दूसरे लोगों के पाकी हासिल करने में और इस मुसलमानों के पाकी हासिल करने में एक फर्क है कि वो लोग कुल्ली से शुरू करते हैं और हम क्या है, हाथ धोने से शुरू करते हैं। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला
अन्हों की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, गालिबन हज़रत साद वज़ू कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साद वज़ू में ज़रा इसराफ से बचो, यानी फजूल खर्ची से बचो। तो उन्होंने सवाल किया, इब्न माजा की रवायत है, सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या फजूल खर्ची है, कोई पैसा थोड़ा खर्चा हो रहा है? तो नबी करीम ने फरमाया कि वज़ू में फजूल खर्ची ये है कि आप पानी ज्यादा खर्चा करें। यहां तक कि आपने फरमाया कि अगर एक मुसलमान नदी के किनारे बैठा हुआ है तो भी उसको चाहिए कि वो पानी को जो है ना इसराफ से खर्चा नहीं करे। मतलब एक है कि वो आप पानी वजू कर रहे हैं और पानी नदी के साथ वही बह रहा है, तब तो कोई मसला नहीं है। वहां से निकाल कर किनारे वजू किया जा रहा है तो भले दरिया के किनारे ही क्यों ना हो, तो भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि पानी जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए। वजह क्या है? वजह तो बहुत माकूल सी है कि अगर दरिया के किनारे बैठ करके आज ये कर रहा तो इसकी आदत यही पड़ेगी और फिर दूसरी जगह की क्या करेगा वो, फिर पानी दूसरी जगह वो खर्चा करेगा। कितने लोग हैं पानी पूरा नल खोल देते हैं, अब वो अपना दांत साफ कर रहे हैं और नल बंद नहीं हो रहा है। अगर वो जितना देखा जाए कि जितना पानी गिराया गया है एक्स्ट्रा, उतने में एक दूसरा आदमी भी वजू क्या है कर सकता है। और इस बात का एहसास नहीं है कि पानी कितनी कीमती चीज है। अगर अल्लाह ताला ने फ्री में दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम इस तरीके से जो है बेजा इस्तेमाल करें। तो इसराफ जो है वजू में मना किया गया है। ये हजरत उबई बिन काब की इसी से मुतालिक रवायत है, सुनन कुबरा ने नकल किया है कि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वजू का एक शैतान होता है। यानी मतलब क्या है कि एक शैतान जो इब्लीस है उसने वजू के लिए एक अलग डिपार्टमेंट कायम कर रखा है कि वो सारे शैतान सिर्फ वजू करने वालों पर अटैक करते हैं। और आप देखें कि ये कितनी सही बात है। उसका नाम भी उन्होंने बयान किया, क्या कहते हैं हज़रत उबई बिन काब ने, कि उसका नाम वल्हान है। और वो क्या करता है कि जब लोग वजू करते हैं ना तो मुख्तलिफ किस्म से वजू को गलत करने के चक्कर में कुछ लोग देखे वजू करते रहेंगे, धो रहे हैं धो रहे हैं धो रहे हैं, उन्होंने कहा वो शैतान उस वक्त उनके साथ खेलता रहता है। और एक बड़ी तादाद अगर नहीं तो कम से कम 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं करते हैं। आप देखें सारी हरकतें, पानी का डाला होना, बैठे हैं कुल्ली कर रहे, पूरा मुंह सब धुल चुके, फिर तो क्या है अब उन्होंने फिर से शुरू किया और इसी में उनकी 1 रकात 2 रकात चली जा रही है, वो अभी फारिग रही है। कभी कभी मैं एक मरतबा मुझे याद नहीं कहा कि मैं वो पैर धुल रहे थे और मैं पहुंचा, मैं वजू से फारिग हो गया और उनका पैर धुलना खत्म नहीं हुआ, वो पैर ही धुलते रहे। तो ये शैतानी हरकत है जो वजू का स्पेशल डिपार्टमेंट शैतानों का है, वो क्या करता है, ये ऐसी शरारतें कराता रहता है। तो इससे जो है वो परहेज करना चाहिए। और फिर वो चूंकि वसफा डालता रहता है, मतलब मालूम नहीं कि कुल्ली किया कि नहीं किया, फिर से कुल्ली शुरू करेगा, फिर से पूरा वजू शुरू करेगा, लिहाजा वो कंफ्यूज करके क्या है कि पूरे वजू में इस किस्म की हरकत कराता रहता है। फिर तातावी की रवायत है कि वजू के दरमियान में गुफ्तगू नहीं की जाए। इससे बाद मुबालगा भी हदीसों में मतलब लोगों ने बयान किया, हदीसों में नहीं लोगों ने, कि वजू जब आप करते हैं तो 4 फरिश्ते हैं वो चादर लगा के खड़े रहते हैं, जब वो एक मरतबा वजू करता है तो एक कोना छोड़ देता है। ये रवायत सही नहीं है। वजू के दरमियान में दुनियावी बातें करना जो है वो बाज़ रवायतों से मना मालूम होता है। लेकिन अगर कोई आदमी दीन की बात करता रहा या कोई मसले से बात करता रहा तो फिर उसके लिए कोई ऐसी मनादी नहीं है। इसी तरीके से फतुल ये फ़ुक़हा ने इससे निकाला है मसले को, और ये पूरे अहादीस के गोया की निचोड़ के तौर पर है। अगरचे उन्होंने हवाला नहीं दिया है लेकिन मकसद वही है। उसमें एक ये है कि जब आदमी नाक साफ करता है तो उसको चाहिए कि बाएं हाथ से जो है नाक, पानी तो दे, पानी बोले दाहिने हाथ से, लेकिन नाक जब साफ करे तो उसको बाएं हाथ से नाक साफ करना चाहिए, दाहिने हाथ से मना है। इसी तरीके से हाथ और मुंह पानी लेता है ना, तो पानी जब लेता है तो ऐसे झाड़ता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे झाड़ता रहता है। बाद लोग मस्जिद आते रहेंगे और पानी रास्ते में झाड़ते रहेंगे हाथ से, एकदम गलत तरीका है। इससे जो है मना। एक तो पहली बात यह है कि जो पानी आपके हाथ में लगा हुआ है ये पानी माए मुस्तामल कहलाता है। माए मुस्तामल का मतलब होता है कि वो पानी जिससे पाकी हासिल की गई है, और ये पानी अब क्योंकि इसके जरिए गुनाह झड़ते हैं, लिहाजा आप उसको मस्जिद में ला करके झाड़ें और ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मना किया गया है। इसी तरीके से बात